The next topic is that is the old and the new. Pakistan is a land where a great civilizations such as the Indus Valley civilization existed in the past. पाकिस्तान एक ऐसा लैंड है जहाँ पे बहुत सारी ग्रेट सिविलाइजेशन है. फॉर एग्जाम्पल इन पास इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है. In some places there are buildings or remains of the buildings that remind us of our history and our ancestor. Ancestor means the people that are above from us, जो हमसे पहले लोग थे, that are ancestors. ठीक है. हमारे above अजदाद, that are our ancestors. ठीक है. So there are some buildings, there are remains of some building that remind us about our history of Pakistan and our ancestors. They help us to learn about our past which still influence our culture and traditions. और ये चीज़ें हमें किस चीज़ की याद दिलाती हैं? हमारे पास्ट के बारे में याद दिलाती हैं, which still influence our, जो अभी तक हमारे कस्टम और ट्रेडिशंस कल्चर को इफ़ेक्ट करती हैं. ठीक है. In a modern city like Islamabad or Karachi, there are many fine new buildings. These remind us that Pakistan is a developing nation. अब जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी में इजाफा होता गया, मॉडर्न सिटीज़ बन गई इस्लामाबाद और कराची, तो दीज मॉडर्न बिल्डिंग्स रिमाइंड अस दैट द पाकिस्तान इज़ अ बिल्डिंग नेशन. ही इज़ कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर सोसाइटीज़ और देयर नेशन. ठीक है. When we travel in an aeroplane, a train or a car, we reminded that Pakistan has a modern communication and the transportation network that can transport us to any part of the country of the world, although we are still when we travel in any train or in any aeroplane, तो ये हमें रिमाइंड कराते हैं कि पाकिस्तान हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. कम्युनिकेशन मीन्स दैट वे ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती रहती है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल मोबाइल, लैपटॉप, सेल फोन्स, टेलीफोन, पेटी सेल्स. So these are also way of communication through which we communicate with one another within a second. So these remind us that we have a modern communication and transportation. Transportation means we have within the hours we can travel from one place to another place. ठीक है. Although we are still a mainly agricultural society, improved communications networks means that even remote areas of the countries are accessible and informed about national issues. लेकिन अभी तक हम स्टिल एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं. ठीक है. लेकिन हमारे इम्प्रूव कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब ये है कि हमारे जो बहुत सारे रिमोट एरियाज ऑफ कंट्रीज़ हैं वो भी इस नेशनल इश्यूज़ के बारे में इन्फॉर्म्ड है. इतनी हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है. ठीक है. जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं डिफरेंट रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्रीज़ मीन डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनमें जो हमारे पास एरियाज़ हैं दे आर आल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर नेशनल इश्यूज़. इतना हमारा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में. Continued development of a rural area is an ongoing priority of our government. Many people are beginning to have improved access to education, hospital, clean drinking waters and the job opportunities. अब गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले वो इस बात को प्रायोरिटी देते हैं कि हमारे पास जो है रूरल एरियाज़ को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें ताकि हमारा जो मुल्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे. और बहुत से लोग इन कामों में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तालीम दी जाए, एजुकेशन अच्छे से ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स दिए जाएँ, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन दिया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए लोगों को, ताकि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो पाकिस्तान है, दैट दे बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. The growing populations mean that there is increased competition for jobs that more skilled professions are needed. Highly educated professions such as the doctors, teachers, IT specialists, accountants and the engineers are in demand here and abroad. As the population is increases, it also increases the demand for the opportunity of the job. So अब जो हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल सच एज टीचर, डॉक्टर भी, इनकी जो है डिमांड वो अब्रॉड में भी और यहाँ पर भी क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है. ठीक है. A more educated population requires the more job opportunities and the government try to provide these by investing in a different employment sector. अब जितने ज़्यादा एजुकेटेड पीपल होंगे उनको उतनी ज़्यादा क्या है हमारे पास जॉब की ज़रूरत होगी. और जॉब कैसे ज़्यादा हो सकती है जब गवर्नमेंट जो है वो अपने जो
सेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, ठीक है। दिस इज़ डन बाय इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कैसे हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने को इम्प्रूव करना। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड, ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट लिंक्स जो हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड ऑथराइजिंग कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट, होटल, मॉल, सिनेमाज एंड अदर लेजर सेंटर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर ऑथराइजिंग कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें इसकी जॉब्स की, ठीक है। The CPEC China-Pakistan Economic Corridor. CPEC stands for China-Pakistan Economic Corridor is a fine example of how Pakistan is playing an important role in promoting international trade as well as building its own economy. CPEC एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि CC के पाकिस्तान जो वो ट्राई कर रहा है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारे पास उसको प्रमोट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकॉनमी को भी बिल्ड कर सके, ठीक है। तो CPEC इज़ एन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट। ये एक ऐसा रूट है जिसके ज़रिए हम चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में क्या हो सकती है, ट्रेड हो सकती है, मीन तजारत हो सकती है, ठीक है। तो CPEC इज़ द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट विच विल डायरेक्टली लिंक ग्वादर पोर्ट इन कराची पाकिस्तान टू यिंगयांग इन चाइना, ठीक है। ग्वादर पोर्ट इज़ लिंक विद द चाइना, दैट इज़ द यिंगयांग पोर्ट इन China. So this is a trade route between the China and the Pakistan. So we can on international level we can trade between different countries.